Hello students, welcome to my channel. We were discussing on the board exam papers of the year 2019 and we were seeing the questions of the chapter real number that came in the exams. In the part 1 of the videos, we had discussed all the 1-marker questions, objective questions and 3 2-marker questions. So today in the second part, we will discuss on the rest 2-marker questions along with all the 3-marker questions. Okay. So as I told, these questions come in the section B of the question paper. Okay. So let's see. This is the 4th question. If HCF of 25 and 117 is expressible in the form 65n minus 117, then find the value of n. Understand the question well. If HCF of 65.117 means it is asking for the number which is the HCF of 65.117, and it is telling us that if that number is expressible in the form of 65n minus 117, then find what is the value of this n. And as you can see, the question is from the NCERT exemplar book. This is a straight question you will find. So now let's go to the solution. I have written the question here again. If HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65n minus 117, then what is the value of the n? We have to find the value of n. We will also see the mark distribution as per the evaluation scheme, as I have already told you. So here we have to find the HCF. Okay, we have to find the HCF of 65 and 117. How do we find that? We know we have to use Euclid's division algorithm. Okay, Euclid's division algorithm को use करके we have to find the HCF. So कैसे करते हैं? This is 117 becomes your dividend and 65 becomes your divisor. So here you get 52, where remainder is the 52, which is not 0. So we have to again continue with the process, जहाँ पे 65 हो जाएगा आपका new dividend and 52 will become your new divisor. So this becomes 52 into 1 plus 13. Again, what is the R? 13. What is the remainder? 13, which is also not 0. So we have to carry on with the process. Now 52 becomes 13 times 4 plus 0. So you get the remainder as 0. As the remainder in this stage is the 0, the divisor in this particular stage is the HCF. So what is the HCF? That is 13. ये HCF निकालने से you will be awarded with 1 mark. Okay. So we are given, हमको ये 13 को लिखना है इस फॉर्म में. So we have to write 13 is equal to 65n and minus 117. So for this stage they have distributed half mark. Okay. So by this you get 1.5 marks already from this 2-marker question. So now I am just changing the side of the question, the numbers. That is 65n minus 117 gives you 13. Now I'll solve the equation. This is a linear equation, as you know. So I get 65n is equal to 130. So now n becomes 130 divided by 65. What is the value of n here? 2. So for this you get half marks. Your mark distribution is complete and I hope you understood the question. It is given कि हमको 65 and 117 के HCF को express करना है in the form 65n minus 117. Then find the value of n. ठीक है, तो हमने पहले HCF निकाला, फिर उसको लिखा in the form of 65n minus 117. So it becomes 65n minus 117 is equal to 13. हमने फिर ये equation को solve कर दिया. We got the value 2. तो let's see whether it is correct or not. अगर आप इसको put करते हो इधर, that is 65 into 2 minus 117. We need it to be 13, right? So this is 130 minus 117. आपका आंसर कितना आया? 13. This step is not required. I just told you to prove whether answer is correct or not. So फिर 13 को हमने ऐसे फॉर्म में लिख के n का वैल्यू कितना निकाला? 2.
Okay, so let's go to the next question. So the question is, find the HCF of 612 and 1314 using prime factorization. तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करके इन दोनों का HCF निकालना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही मतलब इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो लेट्स सॉल्व। हमको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज नहीं करना है, हमें इधर प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है। तो मतलब वी हैव टू राइट 612 as a product of its prime factors. Also we have to write 1314 as a product of its prime factors. So I am doing it in the form of the factor tree because I really like the factor tree. So 612 when divided by the first prime number, that is 2, gives us 306. Again this can be divided as 2 divided by 2, so you get 153. okay, फिर इसको हम वापस से 2 में तो डिवाइड नहीं कर सकते, हम इसको डिवाइड करेंगे किस में, 3 में। देखो आप चेक भी कर सकते हो, 5 + 3 8 + 1 9, तो ये नंबर 3 में डिविजिबल होगा। सो यू गेट 51। फिर 51 को फर्दर अगर हम 3 में डिवाइड करें, सो व्हाट इज द नंबर यू गेट, 17। एंड नाउ ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स। सो आई एम राइटिंग 612 एज हाउ मेनी टाइम्स आई मल्टीप्लाइड 2, 2 बार। उसके बाद में 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है 3 बार। उसके बाद में आपका 17 आता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, 1314। फिर इसको हम प्राइम फैक्टरेशन करेंगे एज इट इज डिविजिबल बाय 2। हमने पहले इसको 2 में डिवाइड किया एंड आपका नंबर आएगा 657। 657 अभी फर्दर 2 में डिवाइड तो नहीं होगा, फिर हम इसको किस में डिवाइड करेंगे, 3 में। चेक करो आप, 7 + 5 12, 12 + 6 18, तो ये फिर 3 में तो हो जाएगा डिविजिबल। तो फिर 3 में मैंने डिवाइड किया, यू गेट 219। सो नाउ इसको हम फर्दर 3 में डिवाइड कर सकते हैं, सो यू गेट द नंबर 73। सो आई गॉट ऑल दिस प्राइम नंबर्स। सो नाउ 1314 कैन बी एक्सप्रेस्ड as the product of its prime factors like this. अभी we have to write the HCF. तो नॉर्मली हम कैसे कैसे नंबर्स को किस किस को लेते हैं while we consider the HCF। जो नंबर सबसे मिनिमम नंबर है दोनों लाइन में, ठीक है। तो 2 को यू हैव टू फाइंड बोथ में है कि नहीं, 2 है बोथ में, तो जो सबसे कम नंबर में है उसको लेना है। यहाँ पे 2 एक बार मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई किया है, सो वी विल टेक 2 वंस, जो सबसे कम है वैसा। फिर नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 3। तो 3 इसमें 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसमें 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो वी विल टेक बोथ। नाउ नेक्स्ट 17 आता है। 17 आपका सेकेंड में नहीं है, तो हम 17 को नहीं लेंगे। इसका खत्म हो गया। अभी इसका देखो एक और बचा हुआ है 73। 73 फर्स्ट में भी नहीं है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। तो हमारा बस इतना ही आएगा, 2 × 3 × 3 which is 18। सो हमारा HCF इन दोनों नंबर का कितना हुआ, 18। तो इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ द नंबर्स यू गेट हाफ एंड हाफ 1 मार्क, एंड टू फाइंड द HCF यू गेट द रेस्ट 1 मार्क, ठीक है। ऐसे आपके 2 मार्क सम अप हो जाते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 255 and 867। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम NCERT एक्सरसाइज। आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें है शायद क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड बिट या ऐसा कुछ। इसका मतलब आप NCERT को इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको देखते ही पहचान में आ जाए ये क्वेश्चन आपके बुक में है एंड आपको उसके आंसर्स याद भी रह जाए कम्प्लीटली। तो इफ इन केस आपको मतलब डाउट हो कि आपके स्टेप में कुछ गड़बड़ है या कुछ भी है, आप आंसर्स याद करके उसके स्टेप को करेक्ट कर सकते हो। 80 मार्क्स के लिए 3 आवर इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है, अगर आपका स्पीड अच्छा है, तो आप आराम से ये कर सकते हो। उसमें से कुछ ट्रायल एंड एरर भी, गेसिंग भी ले सकते हो आप। बट NCERT को एकदम बाय हार्ट करना है। बाय हार्ट करना ये मतलब ये नहीं कि रट्टा मारना है, सारे क्वेश्चन को समझ के इतना प्रैक्टिस करो कि आपको एक क्वेश्चन देख के भी बोल दो ये क्वेश्चन इस पेज में है, ये एक्सरसाइज में है, इसका बिट नंबर इतना है, इसका आंसर इतना है, एवरीथिंग, ठीक है। प्रैक्टिस उतनी लेवल की होनी चाहिए। दिस इज नॉट
मतलब not your language or something, this is math, so all you need is practice. So हमें इधर क्या करना है, क्वेश्चन इज यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, मैंने EDS और में लिखा हुआ है, to find the HCF of 255 and 867. So here 867 is greater than 255. So using Euclid's division algorithm, आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखना, ऑलवेज ट्राई टू राइट, 3 वर्ड लिखने से क्या हो जाएगा. So 867 can be expressed as 255 into 3 plus 102. ठीक है, तो आपका R कितना आया, 102. ये जीरो नहीं आया तो हमको ये प्रोसेस को वापस कंटिन्यू करना है, जहाँ पे 255 will become your new dividend and 102 will become your new divisor. So it is 2 plus 51. 102 into 2 will give you 204. 51, तो R आपका कितना आया, 51. अभी भी जीरो नहीं हुआ, so we have to continue the process again. So now 102 is equal to 51 into 2 plus 0. So इधर आपका R कितना आया, जीरो आ गया. तो अगर R जीरो आ गया, आपका HCF कितना हो जाता है, 51. ठीक है, ये आपका आंसर. इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये ऑलरेडी हमने आपको बताया था पहले. दैट इज 1.5 आपका वो स्टेप्स के लिए पूरा, हाफ मार्क बस इसके आंसर के लिए. ठीक है, समझ में आया कैसा करना है. बस सिंपली हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ही इधर पुट किया हुआ है टू फाइंड द HCF, जहाँ पे आपका रिमाइंडर, जो लाइन पे आपका रिमाइंडर जीरो आ गया, उस लाइन में जो आपका B होगा, जो आपका डिवाइजर होगा, वो हो जाएगा HCF. अगर दोनों में आप B या Q में कंफ्यूज होते हो तो उसके पहले लाइन के रिमाइंडर को देख लो, जो उसके पहले एकदम पहले लाइन का रिमाइंडर है वो आपका HCF है. तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो रीड द क्वेश्चन. 7th question. On a morning walk, 3 persons step out together and their steps measure, इधर से देखते हैं. On a morning walk, 3 persons step out together and the steps measure 30 centimeter, 36 centimeter and 40 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover same distance in complete steps? ये question they have picked from the exemplar. इनडायरेक्ट मतलब यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में आपका, बट द नंबर, जो 3 नंबर यहाँ पे दिए हैं वो 3 नंबर अलग है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द सोर्स एज इनडायरेक्ट सोर्स फ्रॉम द एग्जाम्पलर. ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो इट इज आस्किंग कि 3 लोग जा रहे थे मॉर्निंग वॉक के लिए, एंड ऑल्सो हमको उसका उनके स्टेप का मेजरमेंट भी दिया है. फर्स्ट पर्सन का 30 सेंटीमीटर, सेकेंड पर्सन का 36 एंड थर्ड पर्सन का 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. सो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, मिनिमम कितना पाथ वो 3 लोगों को चलना चाहिए, सो दैट ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स. जैसे कि 3 लोग कंप्लीट स्टेप में सेम डिस्टेंस कवर कर सके. तो इफ वी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो सी हमको सेम डिस्टेंस चलना है. ठीक है, और चलना है, ऐसा नहीं है कि 30 सेंटीमीटर जा रहे हैं लेकिन हमने आधा उसका स्टेप लेके 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कर दिया. वी हैव टू वॉक कैसे, एज द मल्टीपल ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द स्टेप्स. ठीक है, तो ज़्यादा रास्ता चलना है तो फिर मल्टीपल ही देखेंगे. सो वी हैव टू फाइंड द मल्टीपल ऑफ द स्टेप्स, एंड बोला है कि तीनों को सेम डिस्टेंस चलना है. So that has to be a common multiple. फर्स्ट पर्सन भी उतना चलेगा, सेकेंड पर्सन भी उतना चलेगा, थर्ड पर्सन भी उतना ही चलेगा. ऑल्सो इट हैज सेड दैट मिनिमम डिस्टेंस हो, जो कॉमन डिस्टेंस जो तीनों कवर करेंगे वो मिनिमम हो. सो वी कैन से इट इज द लीस्ट, सबसे कम. सो हमको इधर फिर क्या फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो वी विल राइट इट एज 3 persons are out for a morning walk. Measurement of their steps is 30 centimeter, 36 centimeter and 40 centimeter. ठीक है, जो मिनिमम डिस्टेंस वो लोग कवर करेंगे, दैट इज रिक्वायर्ड
minimum distance they need to cover is equal to the LCM of their measurement 30, 36 and 40. जो उनके स्टेप्स का मेजरमेंट है उनका LCM होगा, जो कि आपका रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस हमको चाहिए. फॉर दिस लाइन दे हैव अलॉटेड 1 मार्क. बस एक लाइन में कि हमको फाइंड आउट क्या करना है, इधर LCM फाइंड आउट करना है. क्यों करना है मैंने आपको इधर बताया. इसके लिए यू गेट 1 मार्क. ठीक है, तो चलो फाइंड आउट करते हैं इनका LCM. तो हमको इन तीनों नंबर का LCM विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टरेशन करना होगा. तो 30 को अगर मैं प्राइम फैक्टरेशन करूँ, सो इट इज 6 into 5, so 2 into 3 into 5, this is 9 into 4, so 2 into 2 into 3 into 3. Okay, 40 is 2 into 2 into 2 into 5, 8 into 5 is 40, so 8 into 5. ओके, नाउ व्हाट इज द LCM. जैसे मैंने आपको HCF के टाइम पे बताया था, LCM में उसका उल्टा है. वी हैव टू कंसीडर 2 फर्स्ट. ठीक है, इसमें 1 2 है, इसमें 2 2 है, इसमें 3 2 है. तो हमको टेक करना है हाईएस्ट नंबर 3 times 2. ओके, नाउ 3, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें बिल्कुल नहीं है. तो सबसे ज़्यादा कितना है? 2 बार. नाउ नेक्स्ट नंबर 5, इसमें 5 1 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें बिल्कुल नहीं है. सो हमको कितनी बार लेना है? 1 बार. ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 times 2 cube into square of 3 into 5. So you get 360. Okay, 360 centimeter. For this you get the rest 1 mark. समझ में आया? हमको LCM निकालना है. This we have to write. We get 1 mark out of the 2. फिर LCM निकाल लेने के बाद में we get the rest 1 mark. ठीक है, क्वेश्चन का आंसर समझ में आया. Now let's go to the next question. So this is the last question from our 2 mark question. That is, so that any positive odd integer is of the form 6m plus 1, 6m plus 3 or 6m plus 5 where m is some integer. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो पिक्ड फ्रॉम द NCERT एक्सरसाइज. ये आपका शायद 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन है. तो वापस से क्वेश्चन को समझते हैं. सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म 6m plus 1, 6m plus 3 और 6m plus 5 where m is some integer. ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया था जो कि 4m plus 1 and 4m plus 3 था. तो आई जस्ट गिव यू द उसका स्ट्रक्चर ही आपको मैं बता देती हूँ, नॉट गोइंग इनटू द डीप आंसर. ठीक है, तो लेट a बी एन इंटीजर. आपका जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, लेट a बी द इंटीजर एंड b का वैल्यू हम लेते हैं 6. तो r का वैल्यू कितना होगा? 0 1 2 3 4 एंड 5, बिकॉज r का वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to b बट इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 0. 0 के साथ में इक्वल है, फिर 0 से बड़ा है लेकिन b से छोटा है r का वैल्यू. तो फिर a का वैल्यू भी कितना होगा? 6q plus 0, that is 6q, 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4 and 6q plus 5. राइट, तो ये हो गया आपका a का वैल्यू. ओके, सो अभी हम आंसर की तरफ चलते हैं. लेट मी टेल यू हियर कि a का वैल्यू जो 6q है, दिस इज इवन, दिस इज ऑल्सो इवन एंड दिस इज ऑल्सो इवन. ठीक है, आप कोई भी इंटीजर लो जहाँ पे आप इसमें कंफ्यूज नहीं करना. आई डिड इट इन q, आप उसको m लिख के कर सकते हो. आई एम चेंजिंग इट फॉर यू convenience. This is 6m, this is 6m, this is 6m, 6m and 6m. ठीक है, this is m. Okay, I'll write it again. a is equal to 6m, जहाँ पे m is equal to q. This is 6m plus 1, 6m plus 2, 6m plus 3,
6m प्लस 4, 6m प्लस 5। ओके, तो ये हो गया ए का वैल्यू। इसमें से देख लो आपको, ये इवन है, ये इवन है एंड ये इवन है, ठीक है। 6m का वैल्यू इवन है ऑलवेज, 6m प्लस 2 इज ऑलवेज इवन एंड 6m प्लस 4 इज ऑल्सो ऑलवेज इवन। तो ऑड कितना बचा, कौन से ऑड बचे, 6m प्लस 1, 6m प्लस 3 एंड 6m प्लस 5। So now as a is odd, so it can be written in the form of 6m plus 1, 6m plus 3 or 6m plus 5। ओके, तो इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है फॉर दिस 1 मार्क, ये स्टेप के लिए आपका, सॉरी दिस वन हाफ मार्क एंड फॉर दिस यू गेट हाफ मार्क। तो ऐसा है इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, दिस यू कैन एक्सक्लूड, ठीक है। तो समझ में आया, जो हमने जैसे 4m के टाइप पे 4 क्यूब के टाइम पे किया था, सेम ही क्वेश्चन है, सेम टाइप का आंसर है, ठीक है। सो दिस मच फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू विथ आवर 3 मार्क क्वेश्चन इन अनदर पार्ट, सो दैट आपको बहुत सारा चीज़ एक ही वीडियो में नहीं पढ़ना पड़े। So we will continue with in another video with the rest parts. Till then, thank you and practice the questions well. Happy learning.